اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا رب علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان، علمی کلام میں نبوت کے سلسلے میں پہلا مبحث جو ہے کہ نبوت کیوں، نبوت کی ضرورت کیا ہے، نبوت کی اہمیت کیا ہے. اس میں سے ہم اپنے مبحث کو بہت آگے لے جا چکے ہیں. تو کل ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو یہ کائنات ہے اس میں اللہ نے جو اصل پیدا کی ہے وہ ہے انسان، اور باقی سب کچھ فرع ہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ وہ ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین پر جو کچھ ہے وہ پیدا کیا ہے. تو لہذا تم لوگوں کے لیے یعنی اصل انسان ہے، اور باقی سب کچھ جو ہے وہ فرع ہے، وہ ضمنی ہے، وہ انسان کے لیے ہے. تو بہرحال پھر ہم نے کل مفصل طور پر سورہ والشمس کی ابتدائی آیتوں کا مبحث کھول کے بیان کیا، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ہدایت پانے یا گمراہ ہونے، دو میں سے ایک یا دوسرا، یہ امکان صرف انسان کے اندر ہے. باقی جو کچھ ہے اس میں یہ امکان نہیں ہے. یعنی اس میں بس ایک ہی چیز ہے، یک رنگی ہے. انسٹنکٹس مقرر ہیں، اور جو کچھ کوئی جاندار کرے گا انسٹنکٹس کے مطابق کرے گا. راہ سے بھٹکنے کا، راستے سے بھٹکنے کا امکان نہیں. راستے سے بھٹکنے کا امکان اگر ہے وہ صرف انسان کے لیے ہے، کیونکہ اسے اختیار ہے، اسے ارادہ اللہ نے بخشا ہے. اگرچہ ساتھ میں عقل بھی ادا کی ہے اور بیچ بیچ میں اس کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھی بھیجے ہیں، لیکن تب بھی اس کے گمراہ ہونے کا خطرہ زیادہ ہے. اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام جو آیت ہماری ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، سورہ بقرہ جو ہے، سورہ بقرہ کی 30ویں آیت، البقرہ 30ویں آیت. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ملائکہ سے اللہ نے کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، یا بنانے جا رہا ہوں زمین کے اندر، زمین کے لیے، زمین میں خلیفہ بھیج رہا ہوں. تو سوال ہم نے بار بار یہ بات کہی کہ سوال پیدا ہوا کہ یہ کیوں کر ہوا کہ پہلے اللہ نے خلیفہ کی سوچی، اور جو خلیفہ ہمیں ہمیشہ خلقت کے لیے ہوتا ہے، اور خلقت کی بات نہیں کی اللہ نے. یہ کیسی بات ہے کہ خلقت جس کے لیے خلیفہ ہے اسے مؤخر کیا جائے، وہ بعد میں پیدا کیا جائے، بھیجا جائے، اور خلیفہ جو ان کے لیے ہے اسے بعد میں ابتدا میں ہی بھیجا جائے، خلق کیا جائے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سلسلے میں جواب دیا کہ جو خلیفہ ہے، خلیفہ اصل میں حجت ہے. الحجت
الحجت فرماتے امام صادق الحجت قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. جو خلیفہ ہے چونکہ یہ حجت ہے اس لیے کہ یہ حجت ہے، اہم ترین چیز تو یہی ہے، اس لیے حجت خلقت سے پہلے بھی ہونی چاہیے، خلقت کے ساتھ ساتھ بھی ہونی چاہیے، اور جب خلقت یا خلق یا مخلوقات ختم ہو جائیں گے اس کے بعد بھی حجت برقرار رہنی چاہیے. یعنی ایک حجت جو ہے، خلیفہ جو ہے، الخلیفہ قبل الخلیقہ، الخلیفہ قبل الخلیق، یہ جو مسئلہ ہے الخلیفہ الخلیفۃ قبل الخلیقہ قبل الخلیقۃ، الخلیفۃ قبل الخلیقۃ، یہ ایک گتھی ہے، یہ ایک پیراڈوکس ہے، ایک پزل ہے. یہ خلیفہ کیسے خلیقہ سے پہلے، خلیقہ یعنی خلقات یعنی مخلوقات. تو اس کا جواب امام جعفر صادق نے دیا کہ خلیفہ جو ہوتا ہے یا خلافت جو ہے یا نبوت جو ہے یا امامت جو ہے یہ اصل میں حجت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے حجت ہے. حجت کے معنی کہیں موقع نہ ملے اس انسان کو پوچھنے کا قیامت کے روز، اے اللہ میں گمراہ اس لیے ہوا کہ آپ کی کوئی حجت نہیں تھی، آپ کی طرف سے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں تھا، کوئی رہنما نہیں تھا، کوئی رہبر نہیں تھا، کوئی ٹیچر نہیں تھا، کوئی معلم نہیں تھا، اس لیے میں نے غلط کیا تو کیا، میں کیا کر سکتا ہوں. اگر آپ نے کسی ٹیچر کو، کسی معلم کو، کسی رہنما کو، کسی رہبر کو بھیجا ہوتا میرے لیے تو پھر میں غلطی نہیں کرتا. اسی کو کہتے ہیں حجت. حجت یعنی دلیل تمام، آرگومنٹ اب کوئی نہیں ہے انسان کے پاس. تو امام صادق الحجت قابل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، امام صادق، امام الصادق علیہ السلام. تو لہذا یہ کس لیے یہ حجت کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے دیکھا ان پچھلی سورہ شمس کی آیتوں میں کہ انسان کے اندر پاسبلٹی ہے، کیونکہ اللہ نے ودیت کی ہے اس کے اندر دو طرح کی پوٹینشیلٹیز، فسق و فجور کی بھی اور تقوی کی بھی. لہذا کہیں دو راہے پر یہ بھٹک نہ جائے تو اس کے لیے ہدایت کے انتظام کی ضرورت ہے. امام صادق کا کہنا کیا ہے اصل میں؟ امام صادق کا کہنا اصل میں یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی خلقت کو، مخلوقات کو پہلے پیدا کرتا، خلیفہ سے پہلے مخلوقات کو پیدا کرتا تو گویا ہدایت کا انتظام نہ کرنے کی وجہ سے وہ چیز تلف ہو جاتی. گمراہ ہونا نہیں ہوتا ہے نا، تلف ہو جانا، اطلاف یعنی اطلاف کا خطرہ ہے، اطلاف تلف ہونے کا خطرہ، ضائع ہونے کا خطرہ، بیکار جانے کا خطرہ. یہ تو عین ممکن تھا، اور ایسی چیز اگر ہوتی تو یہ خلافی حکمت تھا، جبکہ ہمیں معلوم ہے یہ چیز خلافی حکمت ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ جو ہے اس کی حکمت الہیہ بے حد و بے حساب ہے. یعنی اللہ تعالی حکیم ہے، پوری کی پوری پروڈنس اللہ کے اندر موجود. اللہ ہی حکمت کا یعنی والی بھی ہے اور حکمت کا مالک، سب کچھ حکمت اللہ تعالیٰ کی واسطے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خلاف حکمت کام کر کے، حکمت کے الٹ کام کر کے یعنی خلقت کو پیدا کرتا اور اس کے لیے ہدایت یعنی خلیفہ یعنی حجت کا انتظام نہ کرتا. تو یہ بات ہے، اسی لیے اللہ نے
खलीफा को पहले भेजा, पहले पैदा किया। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम बता चुके हैं पीछे, इस वक्त थोड़ा याद हो जाए। अब हमने कहा कि जो इंसान है, इंसान जो है ये असल है, और बाकी सब कुछ जो है, बाकी जो कुछ है वो फरा है। ये असल चीज़ नहीं है, बाकी सब कुछ कायनात ये फरा है। असल चीज़ जो है वो इंसान है। यही वजह है कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ये सब कुछ फना हो जाता है, लेकिन ये चीज़ जो है इंसान ये बाकी रहता है, ये ख़त्म नहीं होता है, ये बाकी है, इसके लिए दवाम है। इन चीज़ों के लिए दवाम नहीं है, कायनात के लिए दवाम नहीं है, कहकशानों के लिए दवाम नहीं है, सूरज और चाँद के लिए दवाम नहीं है, जो कुछ है दवाम नहीं है। जो आप हरियाली देखते हैं दवाम नहीं है, जो आप मेवा हाथ देखते हैं दवाम नहीं है। किसी चीज़ का दवा, फना होने वाली चीज़ हर चीज़ है दुनिया में। अगर बका है तो सिर्फ इंसान के लिए, इंसान के लिए बका है। अब अगर इंसान के लिए बका है तो तलफ हो जाता अगर हुज्जत का इंतज़ाम नहीं होता। अब अगर इंसान बाकी रहने वाला है, बहुत ही अहम चीज़ है, वो हमने देख लिया पिछले जो मबाहिस हैं उनमें हमने देख लिया कि बहुत अहम चीज़ है। तो इसको खल्क़ करना और फिर दुनिया पैदा करना, इसके लिए हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, ये सब कुछ जो किया ये किसी मकसद से किया, ये भी हम बता चुके हैं। मकसदियत, पर्पसफुलनेस, मकसदियत जो है ये डिवाइन डिज़ाइन में है। मकसदियत, पर्पसफुलनेस, मशीयती इलाही में डिवाइन डिज़ाइन मौजूद है। और वो डिवाइन डिज़ाइन क्या है? वो डिवाइन डिज़ाइन है ये इंसान जो है, इंसान के लिए चूँकि बाकी रहना है, इसलिए जो कुछ दुनिया में करेगा ये तो दुनिया है मज़राअतुल आखिरा, मज़राअतुल आखिरा, ये मज़रा है आखिरत के लिए। तो इसका मतलब ये है अगरचे इस दुनिया में मुश्किलात हैं, रंजिशें हैं, दर्द आलम हैं, सख्तियाँ हैं, मुसीबतें हैं, असूबतें हैं, ये सब कुछ इंसान बर्दाश्त कर रहा है। किस लिए? क्योंकि इसे एक बुज़ुर्ग, बहुत बड़ा बुज़ुर्ग मानफियात यानी फ़ायदा, मानफियात या फ़वाइद मिलने जा रहे। बुज़ुर्ग बहुत बड़े फ़ायदे, बहुत बड़ी मनफ़ात उसे मिलने वाली है। और किस सूरत में? जन्नत की सूरत में। एक बहुत बड़ा मुकाम उसको मिलने वाला है, फ़ौज़न अज़ीमा, बहुत बड़ी कामयाबी उसको मिलने वाली। कब? जबकि ये हुज्जत के मुताबिक काम करे, जबकि ये अवामिर इलाही के मुताबिक काम करे, जबकि ये नवाही इलाही से परहेज़ करे, तक़वा का रास्ता इख्तियार करे, तब इसको ये मनफ़ियात, ये फ़वाइद मिलने वाले। अब सवाल पैदा होता है, जो ये मनफ़ियात है इसके लिए, इस मनफ़ियत हासिल करने के लिए मेहनत की ज़रूरत है, मशक्क़त की ज़रूरत है, तरबियत की ज़रूरत है, तज़किया की ज़रूरत है। और वो कहाँ मिलेगी? वो इसी दुनिया में मिलेगी जो मज़रा आखिरत। अगर ये मेहनत के बगैर मिल जाती, अगर ये मशक्क़त के बगैर मिल जाती, कोशिश के बगैर मिल जाती, अगर ये कुछ करने के बगैर मिलने वाली होती, तब दुनिया में भेजने की ज़रूरत नहीं थी इंसान को। इंसान को दुनिया में इसीलिए भेजा कि ये कसब करे, इक्तिसाब करे, हासिल करे जो कुछ उसने मिलने वाला है। और वो चीज़ ये है मनफ़ियत और फ़वाइद। और वो मनफ़ियत फ़वाइद क्या है? कामयाबी, उक़बाई, उक़बा के अंदर कामयाबी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, अब इसके बाद हमें ये देखना है कि अब अल्लाह ने उसके लिए हिदायत का इंतज़ाम रखा, ये हम बता भी चुके हैं। लेकिन वो हिदायत जो है, ये हुज्जत वाली हिदायत, ये हुज्जत वाली हिदायत जो है, ये हिदायत जो है, हुज्जत वाली हिदायत, ये कैसे मिलेगी? हमने देख लिया कि इमाम सादिक फरमा रहे हैं, इमाम सादिक दूसरी बात कह रहे हैं। और वो ये है, दूसरी बात जो वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं इस सिलसिले में कि
अल्लाह ने, अल्लाह क्या है? अल्लाह दो चीज़ें हैं, अलग अलग जो नहीं है, एक ही है। एक है ज़ात, यानी कौन है पैदा परवरदिगार, कौन है परवरदिगार, क्या है? कौन है परवरदिगार? ये है कि एक ज़ात है, हमारे समझने के लिए एक सिफात है, खुदा की ज़ात और खुदा की सिफात, ये असल में एक ही चीज़ है, लेकिन हम समझ नहीं सकते हैं क्योंकि ये बहुत हमारी समझ से बालातर चीज़ है। लिहाजा समझने के लिए हम इन दो चीज़ों को अलग कर रहे हैं। उसी तरह जिस तरह इस दुनिया में हर चीज़ एक ज़ातन है, एक सिफातन है, तो उसी पैमाने को हम मुंतबिक करके अल्लाह पर लागू करते हैं कि उसकी ज़ात भी है और उसकी सिफात भी है। हालांकि ऐसा कहना हमारे लिए गलत है, क्योंकि ज़ात और सिफात अल्लाह के सिलसिले में एक ही है, उसमें कोई फ़र्क। जो उनकी अल्लाह की सिफत है वो उसकी ज़ात है, जो उसकी ज़ात है वही उसकी सिफत है। लेकिन ज़ात जो है ये नूर है, नूर ज़ात। अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़, अल्लाह नूर समा, कुरान में मशहूर आयत, अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़। अब जब नूर होगा, जो नूर होता है आँख उसे देख नहीं सकती, इसलिए जनाब मूसा से अल्लाह ने जवाब दिया, लन तरानी, नहीं देख सकोगे मेरा नूर। और ये आम नूर नहीं है जो हम देख सकते हैं, ये नूर है, हम इसकी तरफ देख भी सकते हैं क्योंकि मामूली है। सूरज की तरफ देख नहीं सकते हैं क्योंकि आदमी अंधा हो सकता है, ख़ासकर जबकि सूरज का ग्रहण हो, तब तो ज़्यादा ही नहीं देख सकता। अब जब ये इन चीज़ों के मुकाबले में इलाही नूर जब होगा, इलाही नूर, उसे तो बिल्कुल ही इंसान नहीं देख, क्योंकि आँख में वो कुदरत ही नहीं है, आँख में इस्तिताअत ही नहीं है कि वो नूर इलाही को देख सके। कुल है परवरदिगार में एक नूर ज़ात है, और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है तक़द्दुस सिफ़ात, तक़द्दुस सिफ़ात। तक़द्दुस और नूर अल्लाह ताला का ये ऐसी चीज़ है कि इंसान चूँकि देख ही नहीं सकता है, तो लिहाजा ये पोशीदा है, पिनहान है। लिहाजा इमाम सादिक का फरमाना, ये पोशीदा व पिनहान है। अल्लाह ताला पोशीदा और पिनहान, पिनहान। कौन तो कंज़न मख्फिया, मख्फी, हमारे लिए मख्फी, अपने लिए मख्फी नहीं, लेकिन हमारे लिए मख्फी। अब जब ये मख्फी है, पोशीदा है, पिनहान है, तो हम हिदायत पाए तो कैसे पाए, ये सवाल है। हमारे लिए मुश्किल है कोई राब्ता करना, तो उस राब्ता करने के लिए एक राब्ते की ज़रूरत है और वही नबूवत है। लिहाजा इंसान के साथ राबिता करने की ज़रूरत, जो राबित है, राबिते के लिए, कम्युनिकेशन के लिए राबित जो है वही नबूवत है, वही इमामत है। समझ रहे कि नहीं? ये सब चीज़ें राबित है। राबित के कैसे हैं? ये भी तो इंसान है, ये लोग जो हैं ये भी तो इंसान है। ये राबित कैसे बन सकते हैं? ये इसलिए बन सकते हैं कि अल्लाह ने इनको बरगजीदा किया है, चुना है, बरगजीदा किया है, मुंतखब किया है। जब मुंतखब किया, आपको याद है कि नूर से खल्क किया, नूर इलाही की ज़ात से हमारे पैगंबर को खल्क किया, तो गोया उसका मतलब है वो पहले से बरगजीदा है। बरगजीदा होने की वजह से क्या है कि अल्लाह ने इनको इल्म और हिकमत एक तरफ अता की, इल्म हिकमत इनको एक तरफ अता की, और दूसरी तरफ इनको कौन सी चीज़ अता की? दूसरी तरफ सर्टिफाई करने के लिए, तस्दीक करने के लिए उनको मौजज़ात
मोजज़ात से नवाजा, और एज के मुताबिक मोजज़ात, एक एज में एक ज़माने में एक तरह का मोजज़ा, दूसरे ज़माने में दूसरी तरह का मोजज़ा। अगर 1,24,000 पैगंबर हैं, 1,24,000 किस्म के मोजज़ात उनको अता किए, ताकि जिन लोगों में उन्हें जाना है उन्हें तस्दीक हो जाए कि ये हम जैसे नहीं हैं, ये यकीनन अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं। ठीक है, सही। लेकिन फिर भी एक सवाल बाकी रहेगा, और वो सवाल ये है, अगर ये बरगज़ीदा है, इल्म और हिकमत वाले हैं, मौजज़ात वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो जिन इंसानों की हिदायत के लिए भेजा गया, इनको अच्छी तरह समझे, जिन इंसानों की हिदायत के लिए इनको भेजा गया, तो वो समझें कि इनसे हो सकता है, हमसे नहीं हो सकता। जैसे आमतौर पर हम जब इमामों का, पैगंबरों का जिक्र करते हैं आपस में, तो फिर हम कहते हैं हम उन तक कहाँ पहुँच सकते हैं, इसका एतबार तो और तिम करान इस चीज़ का हम तो नहीं कर पाएंगे, ये हम आमतौर पर कहते हैं, और ये बातिल है, ये बात बातिल है। क्यों बातिल है? बातिल इसलिए कि एक तरफ ये सब कुछ है, लेकिन दूसरी तरफ उनमें ये बात है कि उनको हम जैसे बशर बना के ले गए, हम जैसे बशर बना के भेजा, दुनिया में जब भी भेजा हम जैसे बशर। इसीलिए अल्लाह ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, और तमाम पैगंबर से कहा होगा कि सूरह कहफ और सूरह फुसिलत, ये पहले मैं बता चुका हूँ, शायद आपने लिखा भी होगा, अल कहफ और फुसिलत। कहफ की 110वीं आयत और फुसिलत की 6ठी आयत। पहले सूरत में ये है, कुल या रसूलल्लाह कहिए इनसे, कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, उनसे कहिए कि मैं आप जैसा एक बंदा हूँ, एक बशर हूँ, मलक तो नहीं हूँ मैं। कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, फ़र्क क्या है? यूहा इलैया, मेरी तरफ वाही आती है, और वो वाही क्या आती है? अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि बेशक आपका जो माबूद है वो बेहमता और यकता माबूद है। फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही, और आप में से इंसानों, आप में से जिसको ये उम्मीद हो कि उसके साथ मुलाकात करनी है, यानी एतक़ाद जिनका दुरुस्त है कि हमें आखिर पर मरना है और उसी की तरफ नूर जाऊन, हम वापस पलट के जाने वाले हैं, तो फिर क्या करेंगे हम? फ़लियामल, ऐसे लोग फ़लियामल अमलन सालिहन, वो नेक काम करेंगे, वला युशरिक बेइबादति रब्बिही अहदा, और अल्लाह की इबादत करते वक्त किसी और को उस इबादत में शामिल नहीं करेंगे और शिरक नहीं करेंगे। ये पहली आयत। और दूसरी फुसलत वाली, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, इसी से शुरू हो रहा है, इसी क्लास से। यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, पहली आयत का ये हिस्सा बिल्कुल वही है, लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ है। फस्तकीमू इलैह, उसकी तरफ जाने के सिलसिले में इस्तिकामत से काम लो, डट के रहो। वस्तगफिरू, जब कोई लग़्ज़िश आपसे हो जाए, वस्तगफिरू, उससे बख्शिश के तलबगार हो जाओ, इस्तिग़फ़ार करो, उससे बख्शिश मांगो ताकि वो अफ़ू और दरगुजर करे। और अगर ऐसा ना करे और मुशरिक दूसरी तरफ है, वो वाइलुन लिल मुशरिकीन, मुशरिकीन का रास्ता, मुशरिकीन का ठिकाना वो सिर्फ जहन्नम है, वाइल है। ठीक है कि नहीं? सही। और आखिरी नुक्ता हमारा, टाइम अभी थोड़ा है, ठीक है, आखिरी नुक्ता हमारा, अब ये हमारा जो है, ये हमारा बैकग्राउंड होना चाहिए नबुव्वत के मौजू के दौरान। जब हम नबुव्वत के बारे में बात करेंगे, नबुव्वत के बारे में आर्ग्यूमेंट्स देंगे, तो ये सारे का सारा हमारे जहन के बैकग्राउंड में, जहन के फोबिया में ये सब कुछ रहना चाहिए। तो इसके बाद जो बारी ताला ने बयान किया है वो ये,
کہ حجت کیسے ہے؟ حجت کے بارے میں بات ہے. حجت امام صادق نے کہا حجت ہے، اور حجت ہے خلیفہ یا نبی یا امام، یہ حجت ہے. حجت اللہ علی خلقہ، حجت ہے خلق پر اللہ کی طرف سے. امام بھی، نبی بھی، اور ہادی وغیرہ سب کے سب حجت. کیوں؟ امام رضا سے سوال کیا گیا کہ نبی اور پیغمبر بھیجنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا اصل وجہ یہ ہے کہ لوگوں پر حجت تمام ہو جائے. یعنی نبی اور پیغمبر کا مقصد یہ ہے اتمام حجت ہو جائے، اتمام حجت ہو جائے. اتمام حجت کا مطلب اتمام تمام کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم محشر میں پہنچ جائیں گے اور ہمارے کام اچھے نہیں ہوں گے تو کہیں ہم یہ نہ کہیں اے اللہ آپ نے ہمارے لیے ہدایت کا انتظام نہیں کیا. یعنی کوئی راستہ بچے گا نہیں. دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ نیکوکار لوگ ہیں، نیکوکار بہت سارے ہیں، اور دوسرے ہیں بدکار. صرف دو راستے ہیں. جو بدکار لوگ ہیں وہ حجت تمام ہو کر وہ ہو جائے جو انہیں ہونا ہے. حجت تمام ہو کر وہ جہنم میں جائے، حجت تمام ہو کر جائے، کام مکمل پختہ ہو کے. اور نیکوکار جو ہیں وہ دلائل و براہین، وہ دلائل واضحہ اور براہین بینہ کے ساتھ جنت میں جائیں گے. ایسے نہیں جائیں گے، نہیں، ان کے پاس واضح دلائل ہوں گے اور برہان جو ان کے لیے ہوگا وہ بینہ ہوگا، بینہ ایکسپلینڈ. یہ سب چیزیں ہیں. یعنی اعتقاد، درست اعتقاد کے ساتھ نیکوکار جائیں گے جنت میں. ایسے ہی نہیں جائیں گے جنت میں، درست اعتقادات کے ساتھ. ایسے ہی نہیں. اندھیر نگری نہیں ہے وہاں، اندھیر نگری نہ دارت. اتمام حجت کے معنی ہے اندھیر نگری نہ دارت. سمجھ ہے نا؟ اندھیر نگری نہیں ہے. نیکوکاروں کے لیے دلائل واضحہ اور براہین بینہ کے ساتھ جنت میں جائیں گے. ان کے پاس دلائل ہیں، برہان ہے، اس لیے وہ نیکوکار ہیں اور اسی لیے جنت میں جائیں گے. اس کے بجائے جو بدکار ہیں، جہنمی لوگ ہیں، ان پر اتمام حجت ہو چکی ہے، تو اتمام حجت کے بعد ان کو جہنم میں جانا ہے. اور اسی لیے سورہ ملک، اسی لیے سورہ ملک ہے الملک. الملک کی 6 سے 9 آیتیں، 6، 7، 8 اور 9، 4 آیتیں. اور وہ یہ ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. بدکار یعنی کافر لوگ، کافر و مشرک، کافر و مشرک. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. ان کے لیے کیا ہے؟ بِرَبِّهِمْ، اللہ سے کفر کیا، اللہ کا نہیں مانا، تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے. اور جہنم کا عذاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، ناپسندیدہ ٹھکانہ ہے. اور اس میں کیا ہوگا؟ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب انہیں اس میں ڈالا جائے گا. یہ لوگ جو ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. کیسے ڈالا جائے گا؟ جوک در جوک ڈالا جائے گا. سمعوا لها، یہ سنیں گے جہنم کا کیا؟ شہیقاً، گرج، گن گرج.
जहन्नम, इतना वो यानी शोले इतने उठ रहे होंगे, इतना ज़बरदस्त शोर होगा शोलों के उठने का, जलने वगैरह का, कि वो उसकी जो साइज़ है वही है तफूर, ऐसे शोर गिरज रहा होगा जहन्नम जैसे कि वो आह कर रहा है, आह आह शहीक। तो तकादो तमय्यज़ु मिनल गैज़, लगता है कि गोया गज़ब से जो ये कुफार और मुशरिकीन है इनको जहन्नम में पहुंचने से पहले ही निकल जाएगा। तकादो तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा, जब भी कुल्लमा जब भी उल्क़िया फ़ीहा, मुशरिकीन और काफिरों को उसमें डाला जाएगा, फ़ौजुन फ़ौज दर फ़ौज, जत्थों में, सअलहुम ख़ज़नतुहा, उनसे हर उस वक़्त जो खजीनादार जहन्नम को होगा वो पूछेगा, या खजीनादार होंगे वो पूछेंगे, यहाँ वाहिद में मगर है, क्या पूछेगा? अलम यातिकुम नज़ीर, अलम यातिकुम नज़ीर, हुज्जत, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था जो आपका रास्ता दिखाता? अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई नज़ीर डराने वाला, एक बशीर होता है एक नज़ीर होता है, बशीर जन्नत की बशारत देने वाला, नज़ीर जहन्नम से डराने वाला, क्या कोई डराने वाला तुम्हारे पास नहीं आया दुनिया में? कालू, वो कहेंगे, कालू भला, हाँ आया था भाई, कालू भला, कद जाअना नज़ीर, बेशक हमारे पास डराने वाले आए, पैगंबर आए, मगर हमने क्या किया? फ़कज़्ज़बना, हमने उनको झुटलाया, कज़्ज़बना जाल पे तशदीद, फ़कज़्ज़बना, लेकिन हमने उनको झुटलाया, वक़ुलना, और हमने उनसे कहा, मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर कोई चीज़ नाजिल नहीं किया। आप कहते हैं किताब नाजिल हुई मेरे ऊपर, एक कहता है कुरान नाजिल हो, दूसरा कहता है इंजील नाजिल हो, तीसरा कहता है ज़बूर नाजिल हुई, चौथा कहता है सुहफ़ इब्राहिम नाजिल हुई, लेकिन हमने उनसे कहा वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, अल्लाह ने कोई चीज़ तुम्हारे ऊपर नाजिल नहीं की, इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर, बल्कि इसके बरक्स आप ही भटके हुए हैं, हमको भी भटकाएंगे, आप ही गुमराह हैं, हमको भी गुमराह करेंगे, हम आपका नहीं मानेंगे। तो ये है इस इत्माम हुज्जत के बारे में मबहस। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह अव्वलन व आखिरन व ज़ाहिरन व बातिनन।